Hello दोस्तों, welcome to my channel SLT Learning. I was doing the recruitment for a couple of my client for QA profile, and mostly they wants to hire freshers, like the person who has done the training or training certifications, and they wants to hire them, right? So for that, I am doing like lots of interview. I am just trying to filter out the profile and save my and client time as well. So then I found, like, when I was interacting with the, like, around 15 to 20 profile a day, right? I found, like, there are few things that freshers or the persons who wants to switch from non IT background to the software side. This is, I'm not focusing on a software testing only, but this is for a fresher who wants to jump into the career for IT, if they want a first job, right, in IT. Then couple of things you need to make sure. So in this video, I'm gonna conclude few observations of mine, and I will give useful suggestions to the freshers who are willing to join their career in IT, right? अगर उनको first job नहीं मिल रही है, if they wants to crack the interview, how they can prepare for the interview, and everything we gonna talk about in this particular video. ये छोटा वीडियो रहेगा, मैं क्विकली सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन दिस इज द थिंग्स यू नीड टू फोकस इफ यू रियली नीड अ जॉब on your and you need to start your IT career. So stay tuned and we will continue with that one. Okay, so let's start with the point by point, right? How you can get your first job or how you can crack the interview, what things you need to focus when you're preparing for the any positions at entry level in IT, like development, software testing, QA, or something, anything, right? So basically, I have a QA background. I have around 12 years of background for QA manual and automations. I used to train the people. I am also doing the mentoring and interview for the different companies, right? So first things you need to always make sure it's just prepare your introduction in a such a way, because this is the question where you should be more confident, right? Because आपके बारे में आप खुद ही जानते हो, राइट? तो आपको इस हिसाब से उनको एक्सप्लेन करना है, एटलीस्ट टेक 1.5 और 2 minutes टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज ये क्वेश्चंस मेनली रिक्रूटर इसीलिए फ्रेशर में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू सी हाउ गुड यू आर इन कम्युनिकेशंस एंड मेनली ऑन द थिंग्स दैट यू नो, राइट? बिकॉज आपके बारे में तो आप ही जान सकते हो, तो आप आपके खुद के बारे में कितना कॉन्फिडेंटली उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसको बोलना स्टार्ट करो, जस्ट मेक श्योर कि आप आपके एजुकेशन के बारे में डिटेल में, यानी कि आई पास फ्रॉम बी ऑन दिस ईयर्स ऑन दिस यूनिवर्सिटी, नो, जस्ट सेज योर लास्ट डिग्री, राइट? आई फिनिश माई डिग्री, लाइक दिस इज द हाइएस्ट डिग्री आई हैव इन पर्टिकुलर ईयर, राइट? दैट्स ऑल, बिकॉज अदर थिंग्स ऑलरेडी रिज्यूम में मेंशन होती है, एंड समटाइम्स दे ऑल्सो फील कि यार इसको कुछ आता नहीं है, इसलिए खुद के रिज्यूम के बारे में, एजुकेशन के बारे में इसने 30 सेकंड या 40 सेकंड बोल दिया। क्विकली अपना एजुकेशन का थोड़ा फंडा क्लियर करो, उसके बाद डायरेक्टली आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, जैसे टेस्टिंग में अप्लाई कर रहे हो, तो टेस्टिंग के बारे में बोलना चालू करो कि भाई टेस्टिंग में आपको क्या नॉलेज है। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लिया है, तो उसके बारे में बोलो, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या था, इन ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपने एज अ ट्रेनिंग प्रोजेक्ट लिया था, और आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया था। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा बोलोगे इन इंट्रोडक्शन, दैट विल मेक अ गुड इम्पैक्ट on a recruiter. Otherwise, this is the question where I will just say 75% candidate lose their I will just say is the oral repo, right? तो यहीं पे आपको आपका रेपो बनाना है। तो ये चीज़ मैं नॉर्मली फॉलो करता था व्हेन आई वाज फ्रेशर, और मैं अपने कैंडिडेट को भी देता हूँ। ऑलवेज नोट डाउन करके रखो ये सारी चीज़ें कि खुद को कैसे इंट्रोड्यूस मैं करूँगा, राइट? नोट डाउन करने में या लिख के रखने में कोई बुराई नहीं है। यू कैन यूज इट एनी टाइम, बिकॉज दिस इज व्हेन यू स्पीक सेम थिंग कपल ऑफ टाइम, राइट? यू विल ग्रैब द कॉन्फिडेंट, राइट? जब आपको पता होगा कि मुझे इस हिसाब से बोलना है इंट्रोडक्शन, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के वजह से आपका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव दिखेगा। तो ये हमेशा फॉलो करो कि आप उसको लिख के रखो, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे खुद को एक्सप्लेन करना है। ये मैंने लिखा हुआ है मेरे कुछ कैंडिडेट के लिए, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस थिंग्स। और आपके एट द एंड, राइट, आप ऐसा भी नहीं कि खाली ट्रेनिंग के बारे में बोलो, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप करते हो, तो उसके बारे में लास्ट में आप बोलो, लेकिन बहुत कुछ नहीं। दे वॉन्ट्स टू फोकस, दे, उनको चाहिए कि आप आपके
जो स्पेसिफिक जॉब यानी डेवलपमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है, टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया, तो आप उसके बारे में ज़्यादा बोलो। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना है और मेक श्योर रहना है कि इस क्वेश्चन में आप हमेशा कॉन्फिडेंट दिखो, बिकॉज ये क्वेश्चन तो यू ऑल्सो नो राइट, हर इंटरव्यू क्वेश्चन में, हर इंटरव्यू प्रोसेस में होता ही है। तो ये क्वेश्चन आपको मेक श्योर एकदम पक्के से याद रखना है। ऑल अदर थिंग्स दे नोटिस इज योर कम्युनिकेशंस। नाउ हम लोग क्या सोचते हैं कि कम्युनिकेशन दैट मीन्स यू हैव टू बी टू मच फास्ट फ्लुएंट, नहीं। दे वांट्स फॉर अ फ्रेशर मैनली राइट, फ्रेशर के लिए वो लोग देखेंगे कि ही इज क्लियरली, अगर वो जो भी कम्युनिकेट कर रहा है इज क्लियर और नॉट राइट, जो वो लोग बोल रहे हैं वो आप इजीली समझ पा रहे हो इंग्लिश में। द क्वेश्चन समटाइम्स फ्रेशर क्या करते हैं, हड़बड़ी में क्वेश्चन समझते नहीं है, लेकिन उनको जो आंसर पता होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी कभी सही क्वेश्चन का आप सही आंसर दो, और क्वेश्चन समझे बिना गलत आंसर दो, वो बहुत गंदी इंप्रेशन निकालता है आपकी फॉर अ रिक्रूटर। तो हमेशा मेक श्योर करो कि आप उसको अच्छे से सुनो, और फिर उसके हिसाब से यू शुड स्पीक राइट। तो क्लियर कम्युनिकेशन आपको वहाँ दिखाना है, बिकॉज अदर थिंग्स लाइक राइटिंग और स्पीकिंग में वो देख पाएगा, लेकिन राइटिंग में तो ज़्यादातर नहीं देख पाएंगे कम्युनिकेशन, बिकॉज वो इतना आपको प्रैक्टिकल टास्क नहीं देंगे फॉर फ्रेशर प्रोफाइल मेनली राइट। तो आपको उनकी क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है और क्लियरली आंसर देना है। फास्ट मत बोलो, आप स्लोली बोलोगे तो भी चलेगा, बिकॉज क्यूए की प्रोफाइल में मेनली नाउ दे व्हाई दे वांट पर्सन हु इज गुड इन कम्युनिकेशंस, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अपना होता है कोई भी कंपनी में राइट, उसमें क्यूए का रोल अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्यूए इज द पर्सन who gonna discuss with business people, who gonna discuss with business analyst right। वहाँ वहाँ से वो रिक्वायरमेंट लेके आएगा डेवलपर के साथ, अगर कुछ भी उसको रिक्वायरमेंट में कंफ्यूजन होगा यूनिट टेस्टिंग के बारे में, तो एवरी टाइम सब जगह पे क्यूए को बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना रहता है, बाय राइटिंग अ ईमेल और जीरा में लिख के आप कुछ उसको बैक एंड फोर्थ कर सकते हो, या कम्युनिकेट कर सकते हो। तो उसके लिए कंपनी वांट्स कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है एटलीस्ट ही इज गुड इन कम्युनिकेशन राइट। देखो यहाँ पे चीज है सीखने की, तो वो तो आप फ्रेशर प्रोफाइल में दे विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपको एडवांस लेवल के टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट पता हो, बट कम्युनिकेशन इज द की। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो या रिक्रूटर से बात कर रहे हो, उनके क्वेश्चन को समझो और उसके हिसाब से ही आंसर दो। इफ यू स्पीक विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस दैट विल क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ओके गाइस, तो इंट्रोडक्शन और कम्युनिकेशन तो हो गया, लेकिन द थर्ड थिंग्स राइट वो है सेल्फ लर्निंग। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो कैंडिडेट एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये चीज़ हमारी ट्रेनिंग में नहीं आई है, या ये चीज़ हमने ट्रेनिंग में नहीं सीखी है राइट। बिकॉज सी, ट्रेनिंग लेना दैट इज़ गुड, अगर आप कहीं से ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो या सर्टिफिकेशन कर रहे हो दैट इज़ गुड, बट वो आप पे डिपेंड करता है राइट। ट्रेनर जो भी होगा या कोई भी इंस्टीट्यूट होगी वो आपको सिखाएगी, बट इट्स एंड ऑफ द डे आपको खुद से सीखना है। यू गॉट माई पॉइंट। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई टॉपिक आपके ट्रेनिंग कोर्स में हो या आप कहीं ट्यूशन ले रहे हो वहाँ से आप सीख रहे हो, तो उसको थोड़ा सेल्फ लर्निंग में एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं कि बस ट्रेनिंग में सीखा है वही है राइट। लाइक स्कूल में भी हम हमारा ऐसा ही होता था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको घर पे आके रिवीजन करना पड़ता है। तो सेल्फ लर्निंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज ट्रेनिंग कोर्स या वीडियो ट्यूटोरियल वो वही चीज़ बोलेंगे रिपीटेडली, बट आपको उसको पॉज करके उसके बारे में थोड़ा गूगल करना है, उस टॉपिक के बारे में दो तीन और एग्जांपल लेके आपको अच्छे से उसको समझना है। तो सेल्फ लर्निंग एट अ फ्रेशर लेवल आई विल डेफिनेटली से कि आपको इंटरव्यू में एक अच्छी इंप्रेशन डालनी है, उसको क्रैक करना है, तो सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ऑलवेज फोकस कि जब भी कोई टॉपिक सीखो आप सेल्फ लर्निंग को भी थोड़ा अपना ध्यान दो। तो अभी मैंने बात की कि सेल्फ लर्निंग में राइट नाउ कुछ फ्रेशर को वो भी क्वेश्चन रहता है कि सेल्फ लर्निंग सर हम कैसे करें, हम तो वीडियोस देख लेते हैं, हम लोग तो ये मान लो कि भाई ट्रेनिंग में चले गए, वहाँ पे 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग ले ली, दिन के 2 घंटे हम लोग लर्निंग में निकाल ही रहे हैं। नहीं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप कहीं जहाँ से भी लर्निंग कर रहे हो या जहाँ से भी आप उसको समझ रहे हो, तो ऑलवेज गो विद द प्रोजेक्ट। अगर आप डेवलपर हो तो रिक्वायरमेंट समझो, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट डेवलप करो। अगर आप क्यूए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट समझो और उसके हिसाब से टेस्टिंग करो। प्रोजेक्ट के बिना या एप्लीकेशन के बिना कोई भी लर्निंग आई विल सजेस्ट कि पॉसिबल नहीं है, और उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे।
अगर आप जस्ट डेफिनेशन रटोगे तो उससे आपको खाली उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन हाउ टू यूज़, वो एक्चुअली कैसे यूज़ होता है प्रोजेक्ट में, वो आपको जब आप लर्न कर रहे हो तो आप प्रोजेक्ट के साथ उसको सीखो, तभी आपको एंड टू एंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो आपको समझ में आएगा। और उसके इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो रिक्रूटर आपको कोई भी क्वेश्चंस करेगा, बिकॉज सी रिक्रूटर में भी नॉन टेक्निकल, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो क्यूए के बंदे आते हैं, डेवलपर आते हैं, वो एक्चुअल एचडीएलसी में काम करते हैं, राइट। तो वो जो आपको क्वेश्चंस करेंगे, आप बोलोगे भी मैंने 3 महीने ट्रेनिंग ली है, 6 महीने ट्रेनिंग ली है, लेकिन आपके आंसर से उनको पता चल जाएगा भी इसने ट्रेनिंग में एक्चुअली प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क करते हैं, वो फोकस किया है कि नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाउ गिव अ ट्रेनिंग ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, राइट। तो हमेशा आपके प्रोजेक्ट को ऊपर रखो, ई कॉमर्स, यूएस हेल्थ केयर, या कोई भी एक टॉपिक ले लो। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन इतना मटेरियल्स है ना, अभी आप कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको ध्यान प्रोजेक्ट के बारे में जानना हो तो आप इजीली उसको जान सकते हो। नवीन ऑटोमेशन लैब है, पवन 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 सिंह का एक पवन कुमार का एक जो पूरा है, वो पूरा चैनल आप देखो, वहाँ से आपको बहुत सारे, और उन लोग ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो आप वीडियोस देखो, लेकिन खुद से आप हमेशा मेक श्योर करो कि एक प्रोजेक्ट लेके चलो अपने साथ, राइट। तो वो एक अलग इंप्रेशन आपकी क्रिएट करेगा व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू। नाउ प्रोजेक्ट के बाद मैं एक ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इवन दो मैं जब कोई नई चीज़ सीखता हूँ, राइट, या कोई नया टॉपिक्स या कंसेप्ट में समझने की कोशिश करता हूँ, मैं ऑलवेज एग्जांपल्स को अपने दिमाग में लेके चलता हूँ, बिकॉज एग्जांपल दैट इज द, आई विल जस्ट से वन थिंग्स विच विल क्लियर द ऑल द कंफ्यूजन, ऑल द डाउट्स अबाउट द कंसेप्ट, राइट। तो मान लो अगर आप कोई भी चीज़ जैसे उप्स कंसेप्ट सीख रहे हो, तो उप्स कंसेप्ट में आता है एब्स्ट्रैक्शन, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन का पूरा टेक्निकल प्रोजेक्ट वाइज अगर आप एग्जांपल देखने चाहोगे, इट मे बी बिट कंफ्यूजिंग एट द फ्रेशर लेवल, राइट। तो आप बोलोगे अच्छा एब्स्ट्रैक्शन, एटीएम मशीन ले लिया। तो इस हिसाब से रियल लाइफ के जो एग्जांपल है उसको लेके चलो, एक रियल टाइम एग्जांपल और एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल, राइट। अगर नहीं है, यू कैन गूगल इट, आपको सारे एग्जांपल इजीली मिल जाएंगे। जैसे ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ कभी-कभी इंटरव्यू में वो लोग बेसिक क्वेश्चंस में आपको पूछेंगे कि चलो उप्स कांसेप्ट क्या है? तो आपको डेफिनिशन तो पता है, आपने बोल दिया पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, तो बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म आपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ किया था? राइट? तो ये क्वेश्चंस अभी के जो इंटरव्यू हो रहे हैं ना, वो इस बेस पे ज़्यादा हो रहे हैं कि आपको अगर एक्चुअली चीज़ पता है कि नहीं। बिकॉज़ डेफिनिशन रट्टा मार के लोगों को पता है कि भैया ये को डेफिनिशन तो पता ही होगी। तो वो लोग ये जानना चाहेंगे कि इसको एक्चुअल यूज़ पता है कि नहीं, राइट? तो ये एनकैप्सुलेशन के बारे में बोल रहे हो तो इसको कहाँ यूज़ किया था, आपके प्रोजेक्ट का एक एग्ज़ाम्पल दो। तो आप हमेशा कोई भी टॉपिक्स अगर कर रहे हो तो उसका एक एग्ज़ाम्पल साथ में रखो। मैंने ज़्यादातर देखा है कि मैं जब क्वेश्चंस करता हूँ फ्रेशर को कि व्हाट इज़ प्रायोरिटी, व्हाट इज़ सीवियरिटी, राइट? तो वो लोग डेफिनिशन बोल पाते हैं, बट व्हेन आई आस्क फॉर एग्जांपल, राइट, भाई हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड लोवेस्ट सीवियरिटी का एक एग्जांपल दो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास एग्जांपल नहीं रहते। तो ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल लाइक व्हाट आर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसका डिफरेंट टाइप्स क्या है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल अपने दिमाग में रखो और उसको इजीली याद रखने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल से उसको कंपेयर करते रहो। जैसे एब्स्ट्रैक्शन में एटीएम मशीन समझूंगा, मुझे समझ में आएगा जाएगा ये एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है। तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक्स दैट यू आर अप्लाइंग फॉर टेस्टिंग और डेवलपर। ओके। और ये एक बहुत पुरानी और अच्छी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, राइट। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप जो भी टॉपिक्स या कंसेप्ट सीख रहे हो उसको आप प्रैक्टिस करो, राइट। जैसे मान लो कि आप टेस्ट केस के बारे में सीख रहे हो, राइट, तो आपकी जो प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, उसके टेस्ट केस आप एक्सेल में लिखो, या फिर दूसरी कोई एप्लीकेशन ले लो, amazon.com ले लो फॉर ई कॉमर्स, राइट। ऐसे डोमेन वाइज एप्लीकेशन कुछ कुछ लेके आप उसके बारे में टेस्ट केस खुद से लिखो, टेस्ट सिनारियो समझो, पॉजिटिव टेस्टिंग क्या है, नेगेटिव टेस्टिंग क्या है। तो उस हिसाब से अगर आप लिखोगे, आप खुद से बग ढूंढो, अगर बग मिल गया है तो उसको रेज क्या करना है, तो बग रेज करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आप है ना खुद से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल आपके एक्सेल में लिखो, जैसे मैं खुद ये करता था, राइट। जब मैं ये सब चीजें सिखाता हूँ या मैं सीखता हूँ, तो ये देखो मेरा ये, मैं नॉर्मल एक ये स्ट्रक्चर में खुद से गूगल करके 2-3 जगह पे फॉर्मेट देखा, देन आई फील कि ये मेरा फॉर्मेट ये अच्छा रहेगा, तो मैंने इस हिसाब से खुद से सीखा था। आई थिंक दिस इज वेरी ओल्ड वन, राइट, बट मैं इसको यूज करता हूँ, और जब ये चीज मेरे दिमाग में रहती है, राइट, प्रैक्टिस की हुई चीज, तो इट विल बिकम ईजी फॉर मी
टू आंसर द क्वेश्चंस। और जब आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक लेवल का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और जब आपको वो चीज़ पता होती है, आपको उस चीज़ का नॉलेज रहता है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बोल सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एट फ्रेशर लेवल कि आप उसको प्रैक्टिस करो, जो भी टॉपिक्स आपने सीखे। बल्कि आपके प्रोजेक्ट को तो लो ही लो ट्रेनिंग वाले, लेकिन एक और एप्लीकेशन साइड बाय साइड ले लो, उसको कंपेयर करो कि इसमें टेस्ट केसेस ऐसे बनते हैं, तो मैं इसमें कैसे बना सकता हूँ, और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है, आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि यू गेट योर फर्स्ट जॉब क्विकली। ओके, तो मेरे पास बहुत सारी प्रोफाइल एट अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बिकॉज टेस्टिंग में अभी लोग क्या सोचते हैं कि इट इज़ वो थोड़ा इजी, आई विल जस्ट से इज दी एंट्री पॉइंट है फॉर आईटी में घुसने के लिए, फॉर नॉन आईटी पीपल, राइट। कि अगर उनका एक दूसरी जगह पे एक्सपीरियंस है, उनको आईटी में आना है, तो दे विल ऑलवेज प्रीफर कि भाई मैं क्यूए में चला जाऊँ, टेस्टर बन जाऊँ। तो आप बिल्कुल सही हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज इज एवरीथिंग, राइट। अगर आपको अच्छा नॉलेज है, अगर आप अच्छा नॉलेज गेन कर पा रहे हो कि आईटी के बारे में, या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, या डेवलपमेंट के बारे में, आपने कहीं से अच्छे से ट्रेनिंग ली, यू आर गुड लर्नर, राइट। अगर आपने उसको सीख लिया, तो डू नॉट हेजिटेट। आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड इंडिया में जॉब करने के लिए इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज इंडिया में मोस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड कंपनीज आर लुक फॉर नॉलेज। अगर आपको उसके बारे में अच्छे से पता है एंड दे फील कि यू आर अ राइट फिट, वो आपको डेफ़िनेटली हायर करेंगे। हाँ, कुछ बड़ी कंपनी होती है, उनका एक एक रहता है कि भई हमको कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले ही चाहिए, तो वो लोग आपकी प्रोफ़ाइल शॉर्टलिस्टेड नहीं करेंगे। लेकिन जो होते हैं कुछ कंपनी जो आपकी प्रोफ़ाइल शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, इवन आफ्टर नोइंग कि आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है, तो दे आर डेफ़िनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके पास अच्छा नॉलेज होगा। तो आप अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, अगर आपने अच्छे से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स किया है, डेवलपमेंट का कोर्स किया है, मैंने जो मेरे प्रीवियस टॉपिक्स में बताया, उस हिसाब से आपका लर्निंग कंटिन्यूस रखो। रिक्रूटर के साथ आप अच्छे से बात करके उनसे प्रोफाइल समझो, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं नॉन आईटी हूँ या मेरा कोई और बैकग्राउंड है तो मैं आईटी में नहीं आ सकता हूँ। आईटी कंप्यूटर में नॉलेज इज एवरीथिंग। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी विदाउट लुकिंग कि आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट पार्ट। ये एक बहुत आई विल जस्ट से इज द क्रूशियल टॉपिक्स फॉर ऑटोमेशन टेस्टर, राइट। जैसे आप क्यूए के प्रोफाइल में ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाना चाहते हो, तो ज़्यादातर कैंडिडेट क्या गलती करते हैं कि भाई वो लोग कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं, राइट। तो बोलते हैं कि आई नो सिलेनियम, आई नो जावा, आई नो टेस्ट एनजी, मैं हूँ, मुझे पता है। तो वो लोग इतना बोल के उसको बस वो समझते हैं कि मैंने कर लिया, कुछ बेसिक इंटर इक्वेशंस भी कर लिए कि भाई चलो एक्स पाथ क्या होता है, सी एस एस सिलेक्टर क्या होता है। तो वो सब चीज़ें नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर मैटर करेगा। अगर आप ऑटोमेशन प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे मैनुअल में नहीं जाना है एट फ्रेशर लेवल। मैंने देखा है कुछ कैंडिडेट होते हैं जो बोलते हैं मुझे क्यूए टेस्टिंग में मैनुअल प्रोफाइल नहीं चाहिए, अगर ऑटोमेशन का वर्क है, ऑटोमेशन प्रोफाइल है, तो आई विल हैप्पी टू ज्वाइन, राइट। उनका एक डिमांड रहता है। लेकिन वहाँ पे वो लोग क्या गलती करते हैं कि अगर चलो हम लोग ने मान लिया कि चलो भाई तुमको ऑटोमेशन प्रोफाइल के लिए हम लोग हायर करते हैं, हम आपका इंटरव्यू करते हैं, तो जब भी हम लोग उनको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पूछते हैं, लाइक उप्स कंसेप्ट, राइट। अगर उनको कुछ एल्गोरिथम या लॉजिक के बारे में प्रैक्टिकल पूछ लिया तो उनको नहीं आता है वो चीज़। सो ऑलवेज मेक श्योर, अगर आप गुड ऑटोमेशन टेस्टर बनना चाहते हो, राइट, तो ऑलवेज वर्क ऑन योर प्रोग्रामिंग स्किल। आपका प्रोग्रामिंग अच्छा होना चाहिए। यू कैन टेक एनी लैंग्वेज, जावा ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, पाइथन ले लो। नाउअडेज जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन इज आल्सो इन टू मच डिमांड विद सेलेनियम, राइट। और जावास्क्रिप्ट के साथ आप साइप्रस में भी जा सकते हो। बट आपके थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए, आप प्रोग्रामिंग स्किल आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए कि अगर वो लोग आपको इंटरव्यू में एक छोटा सा प्रैक्टिकल देते हैं, यू कैन इजीली क्लियर इट आउट कि भाई मान लो स्ट्रिंग ऑपरेशन देते हैं, रिवर्स करो या उसमें से स्पेस हटा दो, या काउंट ऑफ कैरेक्टर। तो ऐसे एल्गोरिदम एंड लॉजिक के रिलेटेड वो लोग मेनली क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज मैं भी अगर होता है ऑटोमेशन प्रोफाइल में, तो मैं एरे के रिलेटेड, जावा कलेक्शन के रिलेटेड उनको क्वेश्चंस में डेफिनेटली पूछता हूँ, और उनको मैं बोलता भी हूँ कि आप यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड डू सम प्रैक्टिकल इन फ्रंट मी, राइट। तो प्रैक्टिकल करने के टाइम भी ऑलवेज मेक श्योर करो कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि चलो स्क्रीन शेयर करके ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ, बी कॉन्फिडेंट टू आस्क कि भाई सर कैन आई यूज गूगल और नॉट। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें दिमाग में, वो लोग कभी कभी, जैसे मैं खुद ऐसा, मेरा खुद का प्रैक्टिकल होता है तो मैं खुद ऐसे खुद से बनाया हुआ होता है, तो मैं देखता हूँ कि ये बंदा ये ट्रबल शूट इसको कैसे करता है, ये सॉल्यूशन गूगल में कैसे फाइंड आउट करता है। ये भी एक चीज है कि हाउ यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑन गूगल।
ये भी एक स्किल है, राइट? तो आपको उसमें भी एक्सपर्टीज बनना है, तो ऑलवेज अगर आपको लगता है कि भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो उनको पूछ लो कि सर कैन आई यूज गूगल और नॉट, राइट? सिंटेक्स सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, गूगल में सब चीज मिल जाती है। हाँ, उनको लॉजिक वाला बंदा चाहिए, तो आपको लॉजिक दिखाना पड़ेगा। तो वर्क ऑन योर प्रोग्रामिंग स्किल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ऑटोमेशन प्रोफाइल। ओके, एंड द लास्ट एंड फाइनल थिंग्स, राइट? आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो आपको ऑलवेज मेक श्योर करना है कि आप सीखो, लेकिन साथ में दिन का आधा घंटा 1 घंटा जॉब एप्लीकेशन में भी डालो, राइट? बिकॉज आप अगर आप सीखते रहोगे लेकिन कहीं पे जॉब नहीं दे रहे हो, कहीं पे इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, तो आपका नॉलेज आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से क्वेश्चन दे वो लोग पूछ रहे हैं, राइट? तो ऑलवेज जब भी आप कहीं पे भी अप्लाई करो, अगर रिक्रूटर का कॉल आता है, ट्राई टू कीप अ गुड रिलेशनशिप विद रिक्रूटर, बिकॉज एंड ऑफ द डे वही बंदा होता है जो आपको कंपनी में अंदर ले जाने के लिए ट्राई करता है, राइट? तो रिक्रूटर से आप प्रोफाइल समझ लो पहले तो अच्छे से कि भी मैनुअल टेस्टिंग है, डेवलपमेंट में है तो क्या है, ऑटोमेशन प्रोफाइल है। Another things after this COVID, right? Locations like work from home है, remote अलाउड है और नाइट, अगर ऑफिस से काम करना है तो कितने दिन तक काम करना है, या परमानेंट ऑफिस में से ही काम करना है, लाइक 5 डेज अ वीक और 3 डेज अ वीक, तो ये सब क्लियर कर लो उससे। फिर देन सैलरी का अगर वो बोल रहे हैं सैलरी कितना ऑफर कर सकते हो, या आपका एक्सपेक्टेशन उनको बता दो कि भाई मेरा इतना मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, और उनका भी समझ लो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि एट अ टाइम ऑफ दी अप्लाइंग आप थोड़ा क्लियर रखो, रिक्रूटर से कॉल आए, बिकॉज ये आपका टाइम बचाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि मैंने देखा है कि कोई बंदे अप्लाई करते हैं, फिर उनका लगता है भी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हो गया, वो खुद का भी 1 घंटा निकालते हैं और रिक्रूटर भी 1 घंटा निकाल के उसको पूरा चीज़ समझाती है। फिर उसको पता चलता है कि नहीं सर, मैं अभी तो मैं हूँ पुणे में, तो मैं पुणे के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इवन दो ही नो कि भी यार ये प्रोफाइल जो थी वो दिल्ली के लिए थी या बैंगलोर के लिए थी, बट वो एंड ऑफ द डे वो ऐसा ऐसा उनका हो जाता है कि भाई यार मेरे को तो रिमोट चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा मेक श्योर करो, इससे आप आपका खुद का नॉलेज टेस्ट करने के लिए कर रहे हो, दैट इज फाइन, बट रिक्रूटर क्या करेगा, वो आपकी प्रोफाइल ब्लैक लिस्ट करते रहेगा, वो आपको कभी भी दोबारा कॉल नहीं करेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि भाई चाहिए लोकेशन, मुझे यही लोकेशन पे जॉब चाहिए, आप उसको बोल दो कि भाई मैं ये लोकेशन पे जॉब ढूंढ रहा हूँ। या कहीं पे भी आप पोस्ट देखो या कहीं पे भी देखो, लोकेशन इसीलिए हर जॉब पे मेंशन रहता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो आप मेक श्योर करो, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑफ इन विद द रिक्रूटर। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो ऑन एनी जॉब पोर्टल और लिंक्डइन से कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो। और एट द लास्ट, राइट गाइस, मेरा ये एक जेन्युइन सजेशन है फॉर अ बिगिनर, फ्रेशर बंदों के लिए, कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको हड़बड़ी में मत सीखो, राइट? डू नॉट गेट इन दैट मच रश कि मुझे जॉब चाहिए चाहिए, राइट? पहले आप उसको प्रॉपरली सीख लो, सारे कंसेप्ट थोड़े क्लियर कर लो, प्रोजेक्ट के वाइज आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, राइट? उसके बाद अगर आप मार्केट में जाओगे, बिकॉज उसके अगर आप थोड़ा थोड़ा सीख के जाओगे तो क्या होगा आपका, आप कहीं अप्लाई करोगे, कंपनी ए में अप्लाई किया, वहाँ पे रिजेक्शन आया, तो वो कंपनी आपके लिए थोड़ा 6-8 महीने के लिए बंद हो गई, राइट? वो दोबारा आपकी प्रोफाइल आने के लिए अब 1 साल तक उनका लग जाता है। तो हमेशा मेक श्योर करो कि प्रॉपर नॉलेज ले लो, राइट? तो मैं इसीलिए मेरे सारे कैंडिडेट को भी बोलता हूँ कि यार हड़बड़ी में मत सीखो, कोई एक टॉपिक ले लो, उसको अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिकल समझ लो, उसके एग्जाम्पल समझ लो, प्रोजेक्ट के साथ उसको रिलेट कर लो, और अच्छे से उसको समझो, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाओ आप कॉन्फिडेंट दिखो और आप उसके बारे में अच्छे से बोल पाओ। सो दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल एडवाइस आई वांट टू गिव ऑल द फ्रेशर इन एनी डोमेन, राइट? अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हो उसको अच्छे से एंड प्रॉपरली सीखो, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब। इफ you still struggling with anything, right? अगर मान लो आप यू आर अ फ्रेशर एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब और आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सजेस्ट यू फॉर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, राइट? आप मुझे लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं लिंक्डइन में भी अवेलेबल रहता हूँ, तो वहाँ से भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बट मेक श्योर व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, राइट, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। जैसे हम लोग होम लोन लेने जाते हैं, राइट? तो वो बैंक वाले भी देखते हैं कि भी इसने डाउन पेमेंट थोड़ा भरा है कि नहीं भरा है, उसके बाद ही आपको होम लोन देंगे 90% या समथिंग लाइक दैट। तो ये कैरियर भी ऐसा है कि यार कोई आपको सिखाएगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगी पैसे दे के, राइट? लेकिन आपको खुद को भी थोड़ा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ट्रेनिंग ले ली तो मेरे को आ गया, मेरे को जॉब मिल जाएगी। ऐसा होता तो आफ्टर कॉलेज हम सबको जॉब मिलनी चाहिए थी, लेकिन आफ्टर इवन कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग हमको जॉब के लिए स्ट्रगल इसीलिए करना पड़ता है, फिर हम 3 महीने बाद 6 महीने बाद एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं, फिर वहाँ पे भी पैसे डालते हैं।
वहाँ से भी सीखने के बाद भी जॉब नहीं मिलती। तो कहीं न कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि गलती खुद की भी होती है, खुद से थोड़ा उसको इम्प्रूव करो, राइट? ट्राई टू वर्क ऑन योर वीक स्किल, राइट? उसको अच्छे से समझो और उसके बाद आप अप्लाई करो और मार्केट में रहो। मार्केट में जॉब डेफ़िनिटली मिलती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन है या ये है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, डेफ़िनिटली यू विल गेट अ जॉब। Yeah. So this is all I want to share with you all fresher. So just focus on your learning, right, and apply at the right positions.